ہم سب سے بڑے کرٹکس تھے عمران خان کے، ان کی پالیسیز کے تنقید کی، ان کو اصلاح کے مشورے دیے، ان کے اوپر تنقید کی، لیکن یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی صورت بھی ان پرانے کرپٹ لیڈروں کو فورن فنڈنگ کے اوپر، امریکہ کے لگے ہوئے پیسے کے اوپر کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ موجودہ حکومت کو گرانے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم تنقید ضرور کریں گے موجودہ گورنمنٹ کی ان کی پالیسیز پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ دوبارہ پلٹ کے اقتدار کے اندر آ جائیں، ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور اے عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی ذمہ داران، یہ ساری قوتیں دوبارہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے دوستوں سے ساتھ وفا تو نہیں کی۔ ہم نے اس وقت، یاد ہوگا آپ کو 2018 کے الیکشن کے اندر غیر مشروط طور پہ آپ کو سپورٹ کی تھی، پورے پاکستان کے اندر ہمارے کارکنان نے آپ کو سپورٹ کی تھی، صرف اس وعدے کے اوپر کہ آپ سارے ماڈل ٹاؤن کے اندر میں انصاف دلائیں گے، لیکن آپ اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ 4 سال کے اندر آپ نے ماڈل ٹاؤن کا نام تک نہیں لیا، آپ نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ نے اس ملک اور قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے، وفا نہیں کی۔ آپ کو یقیناً بڑے چیلنجز ہوں گے، بڑے مسائل ہوں گے آپ کو، آپ کووڈ کی بھی بات کرتے ہیں، مافیاز کی بھی بات کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آج اس اسٹیج کے اوپر میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل ایڈوائزر ہی نہیں ہے۔ آپ کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں، کون ہے جو آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، کون ہے جو آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں، جہانگیر ترین کو تو آپ نے فارغ کر دیا، شاید وہ میرے خیال میں بڑا اچھا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا آپ کا۔ ابھی آپ کی ٹیم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کو کون لوگ ہیں جو ہیلپ اور سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو خان صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے خلاف یہ جو موجودہ کرپٹ لیڈر سارے اکٹھے ہوئے ہیں، جو یہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، فورن فنڈنگ سے ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، حکومت گرانا چاہتے ہیں، یاد رکھ لو سارے بے وفائیوں کے باوجود اگر انہوں نے اس طرح کا اقدام کیا تو ہم سب سے پہلے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ایک دفعہ اپنے 5 سال پورے کریں، جو آپ نے وعدے کیے تھے، جو آپ نے لوگوں کو آپ دکھائے تھے، آپ کو پورا موقع ملنا چاہیے۔ ہم بالکل آپ کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت اس ملک کو ڈیلیور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، پریکٹیکل تجربے سے ثابت ہو جائے گا۔ آپ 5 سال پورے کر لیں، اور میں ان ساری مقتدر قوتوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو ہر دفعہ اس قوم اور عوام اور قوم ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور منافقانہ رول پلے کرتے ہیں، آپ سے سدھر جائیں اور آپ یہ کھیل ختم کریں۔ اب بہت ہو چکا ہے، ملک اور قوم کو کتنا مقروض کریں گے، کتنا ذلیل کریں گے، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تبدیلی اور انقلاب کا راستہ ڈاکٹر طاہر القادری سے ہو کے گزرتا ہے۔ جس وقت بھی یاد رکھ لے، یا مذہبی فرقے ہیں، یا مذہبی تضادات ہیں، یا پولیٹیکل مافیاز ہیں، یا فیوڈلزم ہے، یا بہت کچھ ہے، اگر ان سب کی نیچر کو کوئی ایک شخص سمجھتا ہے، کہ مذہبیوں کی نفسیات کو بھی سمجھتا ہے، فرقہ وارانہ پرابلمز کو بھی سمجھتا ہے، جاگیرداروں کی نفسیات کو بھی سمجھتا ہے، اور ان سارے پرابلمز کو ایٹ دا سیم ٹائم حل کر سکتا ہے، اس شخصیت کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ آپ کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، آپ کو ان سے رہنمائی لینی پڑے گی، ان کی بات کو ماننا پڑے گا اگر آپ اس ملک اور قوم کو صحیح ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ناموس رسالت کا مسئلہ، آج لوگ بات کرتے ہیں نا ناموس رسالت کی، تو اس وقت کی بات کریں جب ناموس رسالت کے اوپر عدالت کے اندر قانون پاس ہو رہا تھا کہ جو ناموس رسالت کے اوپر بات کرے گا، جو گستاخی رسول ہوگا، اس کی سزا موت ڈکلیئر کرنی تھی۔ یہ میٹر عدالت کے اندر زیر سماعت تھا۔ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ الازری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آپ اس وقت شریعہ جو فیڈرل شریعت کورٹ تھے اس کے چیف جسٹس تھے، اور آپ کے سامنے کیس آیا کہ جو گستاخی رسول ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا کہ اس کی سزا موت ہونی چاہیے، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ اس وقت جب ان کے کورٹ میں یہ کیس آیا تو بہت سارے علماء جو اس وقت کے تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے، لیکن وہ بعد میں جب بات سامنے آئی تو انہوں نے بتایا کہ جو عالم بھی آتا تھا وہ ان کی جو میلاد کی انہوں نے تقریر یاد کی ہوتی تھی وہ پوری تقریر کر کے چلا جاتا تھا، لاجیکل جو عدالت کو ریکوائرڈ دلائل ہوتے ہیں وہ کوئی پیش نہیں کرتا تھا۔ تو پیر کرم شاہ صاحب بھی بڑے پریشان تھے کہ جو عالم آتا ہے وہ تقریر تو کر جاتا ہے، لیکن مجھے بڑے اسٹرانگ دلائل چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر میں فیصلہ کر سکوں تاکہ رہتی امت تک پھر یہ فیصلہ محفوظ رہے۔ لیکن کوئی ایک عالم اس وقت ایسا نہیں تھا جو یہ فریضہ انجام دے سکتا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے، آپ کو کال کر کے وہاں سے بلایا گیا کہ جناب بڑا اہم میٹر ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، گستاخی رسول کی سزا کا تعین کرنا ہے، اگر آج یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا اور گستاخی رسول کی سزا موت نہیں ڈکلیئر کی جاتی تو پھر یہ معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے آپ جہاں بھی ہیں آپ کائنڈلی واپس آ جائیں اور اس میٹر کے اوپر آپ سے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا دورہ کینسل کیا باہر کا، فوراً واپس آئے، عدالت میں پیش ہوئے، کچھ ٹائم مانگا کہ مجھے تیاری کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے کہ میں پیش ہوگا۔ پیر کرم شاہ صاحب نے ان کو ٹائم دیا، 3 دن مسلسل دلائل دیے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے، بڑے اسٹرانگ دلائل قرآن سنت حدیث کے ساتھ، کوئی تقریر نہیں کی، دلائل کی بنیاد کے اوپر عدالت کے اندر 3 دن مسلسل کیس لڑا۔ اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آن دا ریکارڈ ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں، آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے، سب چیزیں گوگل پہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں۔ 3 دن مسلسل دلائل دینے کے بعد آپ نے عدالت کو کنونس کر لیا کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کی سزا موت ہوگی، اور یہ جو قانون پاکستان کے اندر پاس ہوا تھا یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ایفرٹ سے ہوا تھا۔ یہ آپ سب کو پتہ، یہ ریکارڈ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ آج لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گالیاں دینا، باتیں کرنا اور تنقید کرنا
क्रिटिसिज्म करना ये बड़ा आसान होता है, लेकिन लॉजिकल बात करना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया अपनी लाइफ के अंदर कि गुस्ताखे रसूल की सजा मौत डिक्लेयर करवाई। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, फिरकावाराना दहशतगर्दी की एक लहर उठी। 90 का अशरा सबको याद होगा, जब शिया सुन्नी फसादात शुरू हुए, जंग से शुरू हुई और उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब या इधर से या उधर से कोई मरता नहीं था। हर तरफ बंदूक थी, गोली थी, खून था, कत्लो गारत गरी थी, और इतनी शिद्दत पसंदी का दौर था कि उस वक्त इस टॉपिक पर बोलने का मतलब ये था कि आपको गोली आने लगे, कोई बोल भी नहीं सकता था। और एक फिरके को दीवार के साथ लगाया जा रहा था, काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाए जा रहे थे, और दोनों तरफ कत्लो गारत गरी। इतनी सख्त फिजा थी उस वक्त। 91 की मैं बात बता रहा हूँ, डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने एलामे वहदत जारी किया था उनके फिरके शिया तशीयों के साथ मिलकर, और उसके ऊपर ये बात तय थी कि आज के बाद कोई शख्स भी न सहाबा किराम की गुस्ताखी करेगा और न अहले बैत की गुस्ताखी करेगा। और दोनों फिरकों को एक लड़ी के अंदर पुराया था और मोहब्बत, अमन और आशिकी का पैगाम दिया था। और उस वक्त अपने हमारे मुखालिफ थे कि आपने क्या कर दिया, हम तो सारे, हमारी तो स्ट्रगल ये थी और आपने ये क्या कर दिया। लेकिन तारीख ने साबित किया कि डॉक्टर साहब को जो वो इक़दाम था वो उस वक्त की भी जरूरत थी और आज तक भी उसकी जरूरत है। हमने इस मुल्क के अंदर नफरत की फिजा को खत्म करना है। हर शख्स को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अपना अकीदा छोड़ो मत और किसी के अकीदे को छेड़ो मत। सिंपल सी बात है। अगर आप ये अकीदे तय करने लग जाएंगे और ये तय करने लग जाएंगे कि कौन किसका अकीदा सही और किसका गलत है, क़यामत तक ये मसला हल नहीं हो सकता। 1400 साल में हल नहीं हुआ। लिहाजा इस मुल्क के अंदर अगर आपने अमन, यकजहती, मोहब्बत और रवादारी को फरोग देना है तो उसका तरीका सिंपल यही है कि अपने अकीदे पे कायम रहो, लेकिन किसी मुतबर्रिक शख्सियत की गुस्ताखी मत करो। और ये उस वक्त सबने माना था। और आज आप देख लें उसके रिजल्ट्स आपके सामने। अभी भी पेशावर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, 60 के करीब लोग शहीद हो गए, जख्मी हो गए। ये उसी शिद्दत पसंदी, उसी खारजी फिक्र, वही बुनियाद जिसके खिलाफ डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने जंग लड़ी थी। और हमने सबको समझाया था कि अगर आप उसी रविश को जारी रखेंगे तो ये कत्लो गारत गरी कभी खत्म नहीं होगी, और वो अभी तक भी जारी है। और मैं उस मकतबा फिक्र को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बातें तो बहुत करते हैं, हमेशा आपका खून बहता है, लेकिन कभी भी आप भी इकट्ठे नहीं हो रहे, एक होकर आपने भी बात नहीं। अभी 60 लाशें गिरी, 5 अलग शिया जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहां पर हो रही, मतलब उनकी 60 शहादतें भी उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इकट्ठा नहीं कर सकी। तो आप कब इकट्ठे हो? तो आपको भी चाहिए कि आप एक आवाज बनकर बात करें। और याद रख ले, इस मुल्क के अंदर अगर मजहबी रवादारी, फिरकावाराना तअस्सुब का खात्मा और तमाम मसाले के माबाइन कोई शख्सियत पुल का किरदार अदा कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत है, और उसका नाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी है, कि जिसको सब मानते हैं। हमारे स्टेज के ऊपर सब लोग आते हैं, मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस होती है, देवबंदी भी आती है, हदीस भी आते हैं, तशय्युअ भी आते हैं, सब आते हैं। सबको एक ही पैगाम दिया है कि अपने मसलक के ऊपर कायम रहो, मोहब्बत, अमन और रवादारी का बात करो। ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी की शख्सियत का बहुत बड़ा कारनामा है कि जो उन्होंने मसाले को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद मज़ाहिब के दरमियान तसादुल की बात हुई। तो आपने देखा कि जब 9/11 हुआ तो 9/11 के बाद सबसे बड़ी कैंपेन जो पूरी दुनिया के ऊपर लॉन्च हुई वो मुसलमानों के खिलाफ थी। इनको मुसलमानों को दहशतगर्द का टाइटल दे दो। जब मुसलमान की बात आए तो उस जगह लिखा जाए दहशतगर्द, टेररिस्ट। इस्लाम की बात आए तो कहा जाए टेररिज्म, दहशतगर्द मजहब। और ये हमारे जो इस्लाम दुश्मन लोग थे, लॉबीज थी दुनिया के अंदर जो काम करती है, आज भी काम करते हैं, उन सब ने ये कैंपेन लॉन्च की और इस्लाम को और मुसलमानों के खिलाफ उनको दहशतगर्द करार दिलवाने का एक कैंपेन लॉन्च की। तो डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने उस वक्त भी काम किया जब कार्टून बने डेनमार्क के अंदर और नामूसे रिसालत के ऊपर हमला हुआ। तो नामूसे रिसालत का वो सिपाही, वो मुजाहिद जिसको दुनिया डॉक्टर ताहिर अल कादरी के नाम से जानती है, उसने अपने मुल्क के अंदर टायर नहीं जलाए, अपने मुल्क की दुकानें नहीं जलाई, अपने मुल्क के रोड्स ब्लॉक नहीं किए, बल्कि जिन लोगों ने ये कभी अमल किया था उनको उन्हीं के मुल्कों में जाके उन्हीं की जुबान में जवाब दिया और पीस फॉर ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस यूके के अंदर मुनक्किद की। और दुनिया के अंदर जो जितने मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़ाहिब के टॉप लोगों को वहां पर बिठाया और वहां पर जाके ये पैगाम दिया कि इस्लाम मोहब्बत और अमन का दीन है, मुसलमान एक अमन पसंद कौम है और नबी रहमत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत रहमतुल लिल आलमीन है। और फिर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हजारों लोग यूके के अंदर इकट्ठे हुए और यूके की सरजमीन पे पूरे आलमे मगरिब को उन्हीं की जुबान में बताया कि मुसलमान एक अमन पसंद कौम है, मुसलमानों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से बड़ा तो अमन का रवादार और दीन और है ही कोई नहीं, इस्लाम तो नाम ही अमन और सलामती का है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरी कैंपेन को वहां पर दफन करके आ गए यूके की सरजमीन पर। और उसके बाद पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये बातें डिस्कस होना शुरू गई, उनकी मीडिया के ऊपर डिस्कस होना शुरू गई कि इस्लाम का अगर रियल पिक्चर किसी ने देखनी है तो डॉक्टर ताहिर अल कादरी है, और अगर कोई दहशतगर्दी की पिक्चर देखनी है तो वो फिर बिन लादेन होगा। ये पूरी डिबेट हुई, वहां पर डिस्कशन हुई, आर्टिकल छपे, मीडिया के अंदर डिबेट्स हुई। और सबसे बड़ा काम जो किया वो ये एक बुक लिखी, अभी वो बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर, इंग्लिश के अंदर एक बुक लिखी उन्होंने, चूंकि
खाके बनाए थे, स्केच बनाए थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आपने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम रखा द रियल स्केच ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी स्केच बनाया उन्होंने कहा ये रियल स्केच है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वो क्या था, उसके अंदर सारी अमन मोहब्बत की तालीमात थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, और ये उन्हीं की जुबान के अंदर उनको पैगाम दिया। ये है नामूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ और नामूस रिसालत की बात करना। अगर कोई शख्स कहता है कि आपने बात नहीं की, उसका मतलब यह है कि वो लाइल्म है या झूठ है या बदगुमानी कर रहा है, फैला रहा है। उसका मतलब तो सिर्फ ये था कि अगर अपने मुल्क के अंदर रोडों के ऊपर टायर जलाए जाते, अपने लोगों को परेशान किया जाता, तो शायद यही बात थी। नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने की शख्सियत के बहुत पहलू हैं, और वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी है। आपने पॉलिटिक्स के अंदर भी इस मुल्क और कौम को एक डायरेक्शन दी, और वो डायरेक्शन ये थी कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरे मुल्क के निजाम का मुतालिया किया, रिसर्च की, और आप इस नतीजे पे पहुंचे हमारा जो मौजूदा पार्लिमानी निजाम, ये जिसके तहत हमारे इलेक्शंस होते हैं, ये निजाम कभी भी इस मुल्क के अंदर जेन्युइन तब्दीली को रास्ता नहीं देता। अगर आप इस मुल्क के वेल विशर हैं, इस कौम के वेल विशर हैं, तो आपको सबसे पहले इस मौजूदा पार्लिमानी निजाम को खत्म करना होगा और इसकी जगह को दुनिया का लेटेस्ट निजाम देना होगा, नया निजाम लाना होगा। देखिए, ये जो मौजूदा पार्लिमानी निजाम जिसका तजर्बा पाकिस्तान में हो रहा है, ये अच्छे तरीके से अपने बात दिमाग में बिठा लें कि पूरी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी सिवाय यूके के या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कॉन्टिनेंट है, किसी मुल्क के अंदर भी ये निजाम मौजूद नहीं है। ये निजाम पिट चुका है, खत्म हो चुका है दुनिया के अंदर। यूके चूंकि बाबाए जमहूरियत है, उनकी 1000 साल की तारीख है, तो उन्होंने उसके अंदर बहुत अच्छी इस्लाहात करके इस निजाम को कायम रखा हुआ है। बाकी पूरे यूरोप को आप स्टडी कर दे, अमेरिका को स्टडी कर ले, आप जनाब इधर से जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी डेवलप कंट्री को आप स्टडी कर ले, किसी एक मुल्क के अंदर भी ये वाला गंदा पार्लिमानी निजाम मौजूद नहीं है। अपने कई सदारती निजाम है, कई मुतनासिब नुमाइंदगी के निजाम है, उन्होंने अपने अपने मुल्क के हिसाब से नया निजाम डिजाइन कर दिए। ये वाला पार्लिमानी निजाम सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। और डॉक्टर साहब ने 2 धरने दिए, और दोनों धरनों के अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि इस निजाम को चेंज करो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि आप इस निजाम को ठीक कर दे, नया निजाम ले आए। आप नया निजाम ले आएंगे तो फिर वो खुद ब खुद उस निजाम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो नई क़यादत को इमर्ज होने का मौका देगा और नई लीडरशिप आएगी। ये फ्यूडल लॉर्ड से हमारी जान छूटेगी। ये चकवाल के अंदर भी 3 नाम है, अटक के अंदर भी 3 नाम है। हमारी नस्लें गुजर गई हैं, उन्हीं को हम सुनते आ रहे हैं। यही आएगा, ये उसी का बेटा आएगा और किसी ने नहीं आना। क्यों? फ्यूडलिज्म बेस्ड सिस्टम है, ये जागीरदाराना निजाम है, और पाकिस्तान अवामी तहरीक जागीरदाराना सिस्टम की बागी है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले बलदियाती इलेक्शन के अंदर हम इनको टफ टाइम देंगे। हम अलग से अपना ग्रुप बनाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर जीतेगा भी वही, हारेगा वही, जिसका फैसला पाकिस्तान अवामी तहरीक करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर हैं, आपने उस वक्त की मुक़्तदिर ताकतों को, एस्टैब्लिशमेंट को, आपकी जनाब सारी जो उस वक्त ताकतवर तबकात को उनको ये बात समझाई थी कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप अगर दोबारा इलेक्शन कराने की तरफ जाएंगे, वही लोग दोबारा पलट के असेंबलियों के अंदर आ जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अफसोस कि उनकी शख्सियत को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, उनकी जात पर हमले किए गए, एक मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई जिन्होंने डॉक्टर साहब की शख्सियत पे हमले किए, जो कैनेडा में रहती है, इनका तो स्टेक ही कोई नहीं, ये तो कैनेडा, ये फलां, ये लंदन प्लान, यानी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके ऊपर बात करने की बजाय उनकी शख्सियत पर जाती हमले किए गए और उनकी शख्सियत को कंट्रोवर्शियल किया गया और अवाम उन्नास के अंदर उनकी शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश की गई। लेकिन वक्त ने बताया कि बात वही सच्ची थी जो डॉक्टर तारुल कादरी कहते थे कि निजाम को चेंज करो। वही निजाम अगर दोबारा आएगा, कोई रिजल्ट भी नहीं आना। आज 4 साल के बाद आप देख लें, इमरान खान तब्दीली के सैंपल थे, चेंज का सैंपल थे, वो एक इनकलाब का, तब्दीली का नारा लगा के आए थे। पाकिस्तान की यूथ ने उनको सपोर्ट किया था, करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिया था, और वो तब्दीली की होप और उम्मीद के साथ इस मुल्क के हुक्मरान बने थे। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद वो भी आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि माफियाज मुझे काम नहीं करने देते। जिस तरफ भी इस्लाहात की बात करते हैं, जिस तरफ भी निजाम को ठीक करने की बात करते हैं, आगे से माफियाज आ जाते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर सके। और मैंने हर प्रोग्राम के अंदर, हर स्पीच के अंदर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तनकीद की है कि जनाब आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप इस मुल्क को और कौम को डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन आज 4 साल के बाद अभी तारीख एक और टर्न लेने जा रही है, एक और अजूबा होने जा रहा है हमारे साथ कि वो लोग, वो पार्टियां जो पिछले 40 साल से ऑन एंड ऑफ पर इक़्तिदार थी, जो इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, जिन्होंने इस मुल्क को कर्जों के अंदर जकड़ दिया, वो अरबों खरबों डॉलर का कर्जा आया और पता नहीं किधर गया। देखिए, अगर वो सही जगह लगा होता तो वहां से रिजल्ट भी आता ना, हम कर्जे वापस भी कर देते। इसका मतलब वो सही जगह खर्च नहीं हुआ, हम मकरूज हो गए, हमारे बच्चों का रिस्क छीन के ले गए। वो तमाम पार्टियां आज दोबारा सर जोड़ के इकट्ठी हो गई हैं। और इमरान खान की हुकूमत को गिराना, तो अगर वो गिराना चाहते तो ठीक है, उनका पॉलिटिकल राइट था, मूवमेंट चलाते, लोगों को अपने साथ मिलाते। लेकिन अफसोस, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है दोस्तों, कोई बात भी छुपी रह नहीं सकती आज के दौर में। अब हर जगह पर ये डिबेट शुरू हो चुकी है, हर जगह डिस्कस शुरू हो चुकी है कि फॉरेन कुव्वतें इन्वॉल्व हो चुकी है, अमेरिका का पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, वो सारी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें, उन्होंने अरबों रुपए पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े लीडरों के अंदर बांट दिया है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। इमरान खान के खिलाफ लोगों को खरीदो, अदम इत्मीनान लो, इसको उड़ा दो। तो दोस्तों, पाकिस्तान अवामी तहरीक आने वाले बलदियाती इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करने जा रही है, और इंशाल्लाह पूरे पंजाब की तरह चकवाल के अंदर भी हम अपना धड़ा बनाएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट मेयर लाएंगे, हर जगह पर हम अपने लोग खड़े करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक की हिमायत, सपोर्ट और उसके उम्मीदवारों के बगैर
اب ضلع چکوال کے اندر سیاست کا رخ طے ہوگا اور اس کے ساتھ ہی طے ہوگا، اس سے بغیر نہیں ہوگا۔ اور اپنی گفتگو شعر پر ختم کروں گا کہ ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالا جائے گا، ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالا جائے گا، ہر اندھیرے کے تعاقب میں اجالا جائے گا۔ ہم نے اندھی رات میں توڑا فصیل خوف کو، صبح کی پہلی کرن تک یہ حوالہ جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔